Hi, everybody. A very, very warm welcome. Thank you for joining us this evening for an interactive webinar. I'm sure this is a phase that you have so many questions related to pregnancy, new baby. All of us are going through a different scenario right now with the pandemic, and there are lots and lots of things that we have to adapt to and adjust with. So I'm going to take a very quick moment to introduce you to the concept. This webinar has been organized for you by Dr. Anand Patel, and it has been coordinated by CordLife. All of you have been kept on mute, and the only reason why we have done that is to ensure that it is comfortable for everybody. Otherwise, everyone's voice will cause a lot of echo and static, and no one will be able to hear or understand anything. So the webinar is kept, participants are kept on mute. However, you can communicate with us through the questions window. So if you see on the panel, you have a questions option, a chat option. You can put your questions there, and we will make sure that we answer all your questions and satisfy you before we end the session. Also, for your convenience, this session is being recorded, and at a future point, CordLife will be in touch with you to help and share the recording as well. But now we are almost ready to start, and I know you're pregnant, or maybe you have a new baby, but it is important that you first take care of yourself. So a very quick bathroom visit so that you don't have to leave me in the middle. Grab a bottle of water. If you haven't eaten anything, grab a quick snack and come back here in the next 2-3 minutes because we're all set to start. If you want to make any notes, grab a pen and paper so that you don't miss the important points. All right? So just giving you 2 minutes, get all of these things organized, and then we will get started. थोड़ा बहुत हिंदी में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, और इसके बाद से हम कॉन्वर्सेशन ज्यादा हिंदी में रखेंगे. अगर किसी को हिंदी से कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी, आप चैट में क्वेश्चन डाल दीजिए, हम जरूर अटेंड करेंगे. सो ये वेबिनार आपके लिए डॉक्टर आनंद पटेल ने ऑर्गेनाइज करवाया है और फैसिलिटेटर्स है CordLife, जो स्टेम सेल बैंक है. आज आपके बहुत सारे सवाल होंगे प्रेगनेंसी के बारे में, पोस्ट डिलीवरी के बारे में, एंड पैंडेमिक से रिलेटेड भी काफी सवाल होंगे. तो ये सारे सवाल के जवाब देने के लिए हम आपके लिए आए हैं यहाँ पर. आपको म्यूट पे रखा गया है क्या, ताकि आपको कन्वीनियंस रहे और आपकी सारी जो आवाज है वो कन्वीनियंटली आप तक पहुंच सके और आपको स्टैटिक ना आए. तो इसीलिए अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज चैट विंडो में डाल दीजिए, क्वेश्चंस विंडो में डाल दीजिए, हम जरूर आंसर करेंगे. तो जस्ट पानी की बोतल ले आइए, बाथरूम विजिट कर दीजिए, और फिर हम शुरू हो जाते हैं जस्ट 2 मिनट में. ठीक है, तो अभी टाइम भी हो गया है और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ भी गए हैं, तो आपको और इंतजार नहीं करवाते. आज के हमारे जो पहले स्पीकर हैं, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, डॉक्टर आनंद. डॉक्टर आनंद आपके साथ थोड़ी सी बातें करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे दूसरे टॉपिक्स पर. हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा और डॉक्टर रिद्धि भी है, जो आपके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी है. ऑलराइट, सो पहले डॉक्टर आनंद, ओवर टू यू. Anand Patel. I am a consultant gynec endoscopic surgeon and IVF specialist in Motherhood Women's and Childcare Hospital. So आज ये प्लेटफॉर्म में जो मिलने का और ये वेबिनार कंडक्ट करने का जो मेन रीजन है उसके बारे में थोड़ा शेयर करूंगा. As before COVID pandemic era, we used to conduct such type of antenatal classes regular basis on our institute. हमारे इंस्टीट्यूट में ये एंटीनेटल क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करते थे, बट बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक एरा नाउ गैदरिंग इज नॉट पॉसिबल. सो आई रियली थैंक CordLife स्टेम सेल बैंकिंग टू ऑर्गेनाइज सच अ वंडरफुल इवेंट. सो ये वेबिनार मेनली हम चाहते हैं कि मोस्ट पीपल शुड इंटरेक्ट एज मच एज पॉसिबल, और इसमें हमने ट्राई किया है कि जो हमने टॉपिक्स रखे हैं जिसमें जो भी क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं, बिकॉज इन ओपीडी स्केड्यूल
we mainly focus on your complaints and sonography and other aspects. पर जो आपके दिमाग में जो घर बैठे आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी के बारे में क्या होगा, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में क्या क्या हम कर सकते हैं, एंड पोस्ट डिलीवरी उसके बारे में हम कैसे सब मैनेज कर पाएंगे. सो हमने 3 टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व किए. फर्स्ट टॉपिक will be delivered by Dr. Prerna Shah, who is a senior gynecologist in Motherhood Women's and Childcare Hospital. So, Madam will tell you the care of pregnancy during COVID pandemic era. Then next speaker will be Dr. Riddhi Nanda, who is our nutritionist at Motherhood Women's and Childcare Hospital. She will guide the importance of nutrition during the pregnancy. And last topic will be of Miss Sonali Shivlani, who will guide you post-delivery lactation part and as well as postnatal care, how it should be. So हम चाहते हैं कि after the all 3 talks, आप as many as questions हमको पूछे, and we will try to give all the answers, and if it is not possible, we will mail you, we will coordinate you. We have all your numbers and email. So हम आपको बाद में भी coordinate करेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आपको यही वेबिनार में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले. थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय द टॉक. ओवर टू यू, सोनाली शिवलानी. Thank you, Dr. Anand. And now, audience, ज़्यादा बड़बड़ बकबक करने के बगैर मैं सीधे डॉक्टर प्रेरणा के पास चलती हूँ, जो हमारे लिए प्रेगनेंसी और कोविड-19 इसके बारे में जो आपके सवाल, प्रश्न, डाउट्स और मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आते हैं, ये हमारे लिए सॉल्व करेंगी. तो मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ एंड डॉक्टर प्रेरणा, ओवर टू यू. Just give me 1 minute. Hello everyone, I'm Dr. Prerna Shah from Motherhood Women's and Childcare Hospital. अब आज हम जो बात कर रहे हैं वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोरोना पैंडेमिक और जो प्रेगनेंसी के दरमियान हम क्या क्या फेस कर रहे हैं, उसके लिए ये टॉपिक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू कॉड लाइफ की जिन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म रेडी किया है हमारे पेशेंट्स के लिए. तो सीधा हम पहुंचते हैं कि पूरा बेसिक समझ ले कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन क्या है और उसके साथ प्रेगनेंसी के दरमियान क्या केयर करने की जरूरत है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सोनाली जी. या सो व्हाट इज कोरोना वायरस इन्फेक्शन और कोविड-19? वैसे सबको पता है, लेकिन फिर भी कोरोना वायरस एक फ्लू वायरस है, सार्स कम्युनिटी से है और मेनली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है और जो है उसका स्प्रेड भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो रहा है. तो ये जो इन्फेक्शन है वो शुरू हुआ लेट 2019 में फ्रॉम चाइना. नेक्स्ट प्लीज. वी हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चनरी जो यूजुअली पेशेंट्स ही हमें पूछते हैं ओपीडी में या बाद में कंसल्टेशन के बाद उनके मैसेजेस आते हैं या कुछ ऐसे क्वेरीज आते हैं. तो उसी को ध्यान में रख के ये पूरा क्वेश्चनरी प्रिपेयर किया गया है. तो आगे बढ़ते हैं कि हाउ डज इट स्प्रेड, वो कैसे स्प्रेड होता है. जनरली ये इन्फेक्शन जो है 2 तरीके से स्प्रेड होता है. एक तो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बोलने या कॉफ करने के या जो छींक खाते हैं उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है. या दूसरी वजह है कि अगर ये बोलने, छींक खाने या खांसी खाने के टाइम पे कुछ ड्रॉपलेट्स सरफेस पे सेटल होते हैं, तो वो वहां पे टच करने के बाद अगर वो इन्फेक्शन वाला हाथ हम मुंह पे या नाक पे लगाते हैं तो उससे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर होता है. तो इसीलिए इसकी गाइडलाइंस जो प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए दी गई है वो उसके आधार पे है. नेक्स्ट प्लीज. सबसे पहला सवाल आता है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट करें. हमारे मन में काफी क्वेश्चन होते हैं कि हम उसको कैसे प्रिवेंट करें. हेलो. हाँ, तो सबसे पहले जो हमें गाइडलाइन भी दी गई है कि हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग विद 20 मिनट्स, साबुन या पानी से हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है. जब भी बोलते हैं, खांसी खाते हैं या छींकते हैं तो मास्क पहने रहना, सामने वाला भी मास्क पहने हुए हो और हम भी मास्क पहने रखें और 1 मीटर की दूरी बनाए रखें.
इस तरीके से बेसिक प्रिंसिपल्स है जिससे हम कोरोना वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका ना कोई वैक्सीन या कोई प्रॉपर ऐसा मेडिसिन नहीं आया है या कोई वैक्सीन नहीं बना है। इसलिए प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। हम इसको प्रिवेंट ही कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक एंड वेरी प्रैक्टिकल। अगर ये हम डे टू डे में अप्लाई करते हैं तो पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकल वे है टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। नेक्स्ट प्लीज। कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या रहते हैं? ये दो तरीके से है, जैसे माइल्ड इन्फेक्शन होता है या सीवियर इन्फेक्शन होता है। जनरली इसकी शुरुआत होती है माइल्ड इन्फेक्शन, माइल्ड सिम्टम्स से, जैसे कॉफ होना, सोर थ्रोट माने गले में दुखना, फीवर होना, पूरा बॉडी पेन होना, टायर्डनेस है, वीकनेस है, और स्मेल और टेस्ट दोनों का सेंसेशन थोड़ा कम हो जाना या चले जाना, स्मेल और टेस्ट पता नहीं चले पर्टिकुलर। और कुछ पेशेंट्स में जैसे पेट में दुखना, डायरिया होना, नाउजिया, ये सब भी सिम्टम्स पाए जाते हैं। और सीवियर केसेस में ब्रीदिंग डिफिकल्टी और जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो डाउन होके ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होती है कुछ पेशेंट्स को। ये पेशेंट्स को एडमिशन करके आईसीयू में एडमिट करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जनरली ये सिम्टम्स कब शुरू होते हैं? हम कोई भी इन्फेक्शन वाले पेशेंट, जैसे हमें पता चलता है बाद में कि हम कुछ दिन पहले ये पेशेंट के कांटेक्ट में, ये पर्सन के कांटेक्ट में आए थे और वो अभी कोविड पॉजिटिव हुआ, तो हम पैनिक हो जाते हैं कि अरे मैं इसको मिला हूँ या उससे बातें भी की है, कुछ दिन कांटेक्ट में रहे हैं, कुछ टाइम कांटेक्ट में रहे हैं, तो मेरा क्या होगा? तो जनरली ये जो सिम्टम्स चालू होते हैं वो कांटेक्ट में आने के 2 दिन से लेके 5 दिन के अंदर डेवलप होते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर लेट जैसे 11-12वां दिन पे भी डेवलप होते हैं, लेकिन वो वेरी रेयर है। जनरली 2 से 5 दिन के अंदर ही ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि हम किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं, तो इनिशियल 1 वीक हमें क्वारंटाइन रहना होता है, सबसे कम्युनिकेशन में, पर्सनल कम्युनिकेशन में नहीं रहना है। नेक्स्ट प्लीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर प्रेग्नेंट फीमेल के लिए। ये पैनिक और फियर एवरी प्रेग्नेंट लेडी इज फेसिंग राइट नाउ, कि क्या कोरोना इन्फेक्शन जो इन जनरल पॉपुलेशन को होता है, तो उसमें प्रेगनेंसी में उसका रिस्क बढ़ जाता है कि सेम है या कम है? तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग कि प्रेगनेंसी में इसके जो होने के चांसेस है वो जनरल पॉपुलेशन से कम है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी वैसे भी बहुत कम बाहर निकलना या ज्यादा लोगों के संपर्क में आना कम होता है। उसकी वजह से भी कम पाया गया है ये इन्फेक्शन। और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जो होने के चांसेस है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट सेम है। और इन्फेक्शन जो होते हैं वायरल इन्फेक्शन, उसमें प्रेगनेंसी थोड़ा हाई रिस्क पे आता है, जबकि ये इन्फेक्शन में अब तक की स्टडी पाए गए हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज आर नॉट एट हाई रिस्क, दे आर जस्ट लाइक सिमिलर लाइक द अदर पीपल। जनरली जो एजेड पेशेंट होते हैं प्रेगनेंसी में भी, जिसका एज 40 प्लस है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कुछ और बीमारी है, तो फिर चांसेस और रिस्क दोनों बढ़ जाता है। अदरवाइज हेल्दी यंग लेडीज में इतना इन्फेक्शन होने के चांसेस या तो सेम है या आप घर पे रहते हो तो बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये भी बहुत कॉमनली पेशेंट्स के दिमाग में चलता है कि क्या कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाने के बाद हमें मिसकैरेज, मतलब कि जो शुरुआत के महीने हैं उसमें मिसकैरेज होने के चांसेस या डिलीवरी टाइम से पहले होने के चांसेस रहते हैं, क्या ये इन्फेक्शन बच्चे में पास होता है? तो या बर्थ के बाद बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है? तो अब तक की स्टडीज, ये कंटिन्यूसली रिसर्च चल रहे हैं इस पे, लेकिन अभी तक की स्टडी बता रहे हैं कि ये इन्फेक्शन की वजह से मिसकैरेज या प्रीमैच्योर लेबर, मतलब टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ते नहीं हैं। और जो अंदर मदर के अंदर जब बेबी होता है तो मदर टू बेबी का ट्रांसमिशन का रिस्क भी नहीं है। अब तक ऑलमोस्ट कोई भी केस ऐसा पाया नहीं गया है कि मदर टू बेबी ट्रांसमिट हुआ हो। नेक्स्ट प्लीज। ये भी बहुत कॉमनली क्वेश्चंस रहते हैं कि हम क्या, वो हमारे यहाँ बहुत ट्रेडिशन है कि प्रेगनेंसी के दरमियान 7th या 8th मंथ पे कुछ रिचुअल्स होते हैं, श्रीमंत बोलते हैं या गोद भराई बोलते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं
जनरली ये सब सेलिब्रेशंस में काफी लोगों को बुलाना ये सब रहता है, तो हम जनरली एडवाइस करते हैं कि आप जिनके साथ रहते हो घर में, जो लोग आपके साथ ऑलरेडी रहते हैं उनके साथ ही ये आप विधि कर सकते हो, लेकिन बाहर से किसी और को इनविटेशन मत दो. इनफैक्ट वर्चुअल सेलिब्रेशन इज पॉसिबल. गेट गुड आइडियाज ऑफ वर्चुअल सेलिब्रेशन कि हम ऑनलाइन सबसे मिलके सेलिब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली सबको इनवाइट करना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है. हो सके उतना कम लोगों से एक्सपोज हो, कम लोगों के संपर्क में आए उतना अच्छा है. नेक्स्ट प्लीज. यस, कुछ पेशेंट्स को सवाल रहता है कि क्या हम ट्रैवल कर सकते हैं और स्पेसिफिक क्या एडवाइस रहती है ट्रैवलिंग के टाइम. तो डेफिनेटली जैसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग है तो यू कैन डू विथ योर ओन प्राइवेट व्हीकल. जनरली इस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एडवाइजेबल नहीं है, राइट. और जो डिस्टेंट जर्नी है, जिसको फ्लाइट बाय एयर जाना है, उनको भी हम एडवाइज करते हैं कि थ्रू आउट जर्नी आप मास्क पहने रखो और कांस्टेंट ये जो फिजिकल सोशल डिस्टेंस है और हैंड वॉश है, या पानी अवेलेबल नहीं है तो हैंड सैनिटाइज करना, ये सब आप कांस्टेंट प्रैक्टिस में रखो तो प्रॉब्लम नहीं आता है. यू कैन ट्रैवल, बट मेक श्योर कि आप जहां पे भी ट्रैवल कर रहे हो वो एरिया भी ये इन्फेक्शन के केसेस ज्यादा ना हो और वो एरिया भी कंप्लीटली सेफ हो, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज वहां पे अच्छी हो जिससे कोई भी इमरजेंसी कंडीशन में आप इजीली मेडिकल फैसिलिटी अप्रोच कर पाओ. नेक्स्ट प्लीज. What are the changes in the antenatal care visits? जनरली क्या है कि जब भी पेशेंट प्रेग्नेंट होता है, अब पता नहीं है कोविड-19 कितना लंबा चलने वाला है. शुरू में लगता था कि 3 महीने 6 महीने, लेकिन अब पता नहीं है कि ये कितना लंबा चलेगा. तो पेशेंट्स को ये रहता है कि हमारा जो एंटीनेटल केयर है, जो हर महीने चेकअप होते हैं, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है या फिर कोई वैक्सीन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत है. तो मैं बताती हूँ कि जो एंटीनेटल विजिट्स है वो एज पर शेड्यूल ही रहते हैं, लेकिन जो लो रिस्क प्रेगनेंसी है उनके विजिट्स हम कुछ कम कर सकते हैं. जैसे हर महीने के बदले 1.5 महीने पे चेकअप पे बुलाना, और वो एक चेकअप है उसमें सारा कंबाइन करना, जैसे ब्लड टेस्ट है, सोनोग्राफी है, कंसल्टेशन है, सब कुछ क्लब करना, जिससे पेशेंट को बार बार घर से बाहर ना निकलना पड़े और हॉस्पिटल में आना ना पड़े. तो एंटीनेटल केयर विजिट्स भी यूजुअली पेशेंट को एडवाइज करते हैं कि फोन करके ही हॉस्पिटल आए, जिससे पेशेंट को अननेसेसरी हॉस्पिटल में वेट ना करना पड़े, ज्यादा लोगों के एक्सपोजर में ना आए और केओस ना हो हॉस्पिटल में भी. और दूसरी चीज, वैक्सीन में जनरली जो रेगुलर वैक्सीनेशन देते हैं वो भी वैक्सीन अभी दे रहे हैं. फ्लू वैक्सीन भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स को मिथ्स होते हैं कि फ्लू वैक्सीन क्या हमें कोरोना इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, तो नहीं. फ्लू वैक्सीन सिर्फ स्वाइन फ्लू से प्रोटेक्ट करता है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक इट, क्योंकि हमारे यहाँ सीजनल स्वाइन फ्लू का भी रहता है. तो वी गिव बोथ वैक्सीनेशन, टिटेनस एंड फ्लू वैक्सीन बोथ, लेकिन वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन के सामने कोई प्रोटेक्शन नहीं देता, राइट. और जनरली पेशेंट्स बोलते हैं कि इस टाइम पे हमें क्या एक्स्ट्रा ध्यान रखना है खाने के बारे में, या कुछ ऐसा करें जिससे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें. खाने के बारे में हमारे साथ है डॉक्टर विकेश, शी इज गोइंग टू टेल एवरीथिंग अबाउट दैट, बट आई विल सजेस्ट ओनली वन थिंग कि अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, ज्यादा न्यूज से दूर रहें, क्योंकि कांस्टेंट मीडिया में, कांस्टेंट सोशल न्यूज से हमारा माइंड कांस्टेंट पैनिक रहता है. तो ट्राई समथिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज, योगा है, एक्सरसाइज है, क्रिएटिव आपकी जो हॉबीज है, रीडिंग है, म्यूजिक है, एंड अच्छी नींद और अच्छा खाना. These all things, and सबसे इम्पोर्टेंट है हैप्पीनेस. जितना आप खुश रहेंगे, कम पैनिक होंगे, कम चिंता में रहेंगे, उतना बेबी के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए वो इम्यूनिटी बूस्टर ही है. नेक्स्ट प्लीज. What is usually treatment advisable for the, suppose कोई एंटीनेटल प्रेगनेंसी पेशेंट आता है और कोविड-19 पॉजिटिव आता है, तो वो पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं. तो जनरली जब इनिशियली फेज होता है, जैसे पहले 6 महीने या 8 महीने के फेज के अंदर, सपोज पेशेंट को इतने ज्यादा कोई सिम्टम्स नहीं है या माइल्ड सिम्टम्स है, तो होम केयर, होम आइसोलेशन इज ऑल्सो पॉसिबल. तो होम केयर के साथ हम जो पूरी टीम होती है डॉक्टर्स की और स्टाफ हेल्थ वर्कर्स की,
वो घर पे ही आपसे चेकअप करेंगे, मेडिसिन देंगे और आपको होम आइसोलेशन में ही, होम केयर में ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन जो पेशेंट्स एजेड है, प्रेगनेंसी में भी एडवांस एज है जैसे 40-45 के साथ, विथ सम फिजिकल इश्यूज ऑल्सो जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो वैसे पेशेंट को हम एडमिशन एडवाइस करते हैं क्योंकि उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए, राइट। तो माइल्ड केसेस में जनरली घर पे ही मैनेज हो जाता है एंड वी कैन मॉनिटर फ्रॉम होम इटसेल्फ। तो जो सीवियर केसेस होते हैं उसको एडमिशन करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मदर कोविड पॉजिटिव है और हम डिलीवर कराते हैं, सपोज कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट फुल टर्म पे है, पूरे महीने पे है और डिलीवरी का प्लान चल रहा है, तो डेफिनेटली हमारे पूरे अरेंजमेंट्स रहते हैं कि हम उसको कोविड हॉस्पिटल में ही जाके डिलीवर करवाएं और पूरा मदर का केयर ले। लेकिन अगर बेबी का क्या स्टेटस रहता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो आफ्टर बर्थ बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। WHO की गाइडलाइन है कि डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवाइजेबल, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के जो फायदे हैं वो ये इन्फेक्शन से कहीं ज्यादा है। थ्रू आउट जो हमारी लाइफ है, बच्चे की जो थ्रू आउट लाइफ है, उसमें काफी इन्फेक्शन से और काफी डिजीज से वो उसको प्रिवेंट करता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो तरीके के ऑप्शंस जनरली देते हैं। जैसे मदर पॉजिटिव है एंड इफ शी इज विलिंग कि बेबी को उसके साथ रखना है, तो अच्छे से हैंड वॉश करके बेबी को हैंडल करना है और फीडिंग कराने के टाइम पे कंटिन्यूअस फेस मास्क पहनना है और कंटिन्यूअस जब भी किसी चीज को टच करते हैं या बेबी को टच करते हैं तो हैंड प्रॉपर वॉश करने हैं। और बाकी के टाइम पे फीडिंग के बाकी के टाइम पे बेबी को डिस्टेंस पे रखना है। अगर मदर चूज करती है कि बेबी को आइसोलेशन में रखना है, मतलब उसके साथ नहीं रखना है, इन्फेक्शन का डायरेक्ट रिस्क नहीं लेना है, तो वैसे केसेस में भी ब्रेस्ट फीडिंग इज पॉसिबल। जैसे मदर है वो पूरा सैनिटाइजेशन के साथ ब्रेस्ट पंप से मिल्क एक्सप्रेस करके पूरा जो कंटेनर है उसको प्रॉपर क्लीन करके उसमें मिल्क नॉन कोविड जो घर के फैमिली मेंबर्स है जो नॉन कोविड है, जो पॉजिटिव नहीं है, they can feed baby with a bottle or चमची and spoon and कटोरी। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवाइजेबल। ब्रेस्ट फीड से इंफेक्शन स्प्रेड नहीं होता है, मिल्क से इंफेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। एंड डेफिनेटली जब भी बेबी बर्थ होता है तो सबसे पहला बेबी का भी टेस्ट होता है। अगर मदर पॉजिटिव आती है तो बेबी का भी टेस्ट होता है और वो जो टेस्ट होता है वो रिपीट भी होता है 7 डेज के बाद। और अब तक इट इज अवर फॉर्चुनेट कि अब तक ऐसे बच्चों में ऐसे कोविड-19 न्यूबॉर्न बेबीज में पाए नहीं गए हैं थ्रू मदर। ओके, नेक्स्ट प्लीज। व्हाट प्रिकॉशन शुड आई टेक आफ्टर डिलीवरी? जनरली डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद जब पेशेंट घर जाते हैं तो सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं कि विजिटर्स का जो है वो एक्सपोजर कम रखे, क्योंकि हमारे यहाँ काफी सोशल और रिचुअल्स होते हैं और स्पेशली उसमें मना करना ये सब थोड़ा और हो जाता है पेशेंट्स के लिए। लेकिन आई वुड सजेस्ट स्ट्रिक्टली कि विजिटर्स के हॉस्पिटल में तो हम बहुत कम विजिटर्स अलाउ करते हैं, जैसे 2 विजिटर या 1 विजिटर अलाउ करते हैं। लेकिन घर जाके भी आप बिल्कुल आपके घर में जो लोग हैं उसके अलावा बाहर के लोगों को बिल्कुल अभी इतना एक्सपोज मत हो, और जो भी है आप फोन से या किसी और तरीके से कांटेक्ट में रह सकते हैं या बात कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली जितने विजिटर्स कम रखें उतना बहुत अच्छा रहेगा। Next please. How do we less anxious and stressful in this time? बोलना बहुत इजी है, लेकिन we know क्योंकि हम डेली काफी एंटीबायोटिक पेशेंट्स देखते हैं और पेशेंट्स को अंदर ही अंदर कहीं स्ट्रेस रहता है कि कोविड का क्या इफेक्ट रहेगा। लेकिन आई विल सजेस्ट कि प्रेगनेंसी के दरमियान उसके चांसेस वैसे कम है, लेकिन फिर भी आप जितना प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हो, घर पे रहने का, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ऑप्ट करते हो, जरूरत के बिना घर से बाहर नहीं निकलना है, तो ये सब फॉलो करने से इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मैंने पहले भी बताया वैसे कि क्रिएटिव एक्टिविटीज करने से कम स्ट्रेसफुल रहा जा सकता है। And do have touch with the other people of the family members, जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे फोन से या किसी और तरीके से आप कांटेक्ट में रह सकते हो, तो जिससे आपका मूड भी फ्रेश रिफ्रेश होता रहे।
तो सबसे कम्युनिकेशन में रहे, सोशली भी और टेलीफोनिक, लेकिन जो प्रिवेंशन के लिए मेजर्स हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उसको कंप्लीटली फॉलो किया जाए। नेक्स्ट प्लीज। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो शुरुआत में ऐसा था कि अभी हम थोड़े महीने के बाद प्लान कर देंगे प्रेगनेंसी, लेकिन अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं और काफी पेशेंट्स को ये क्वेरी भी आती है कि क्या हम प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि दिस फेज इज गोइंग, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू बी वी डोंट नो। सो डेफिनेटली इट इज कंप्लीटली अ पर्सनल चॉइस कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि इट इज कम्प्लीटली सेफ, क्योंकि हॉस्पिटल में भी पूरे मेजर्स लिए जा रहे हैं कि किसी को क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और दूसरी चीज है कि प्रेगनेंसी में ट्रांसमिशन और प्रेगनेंसी में जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन कोविड के हैं वो होने के चांसेस बहुत कम है। तो डेफिनेटली पर्सन कैन प्लान, कपल कैन प्लान प्रेगनेंसी और दे कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट आल्सो। नेक्स्ट प्लीज। शुरुआत में कुछ पेशेंट्स आते थे जिनको होता था कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है और क्या किया जाए, तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। खुद से मेडिसिन या फोन पे मेडिसिन नहीं लेनी है। कुछ लोग हॉस्पिटल जाने का अवॉइड करने के लिए खुद से मेडिसिन ले लेते हैं फार्मेसी से, व्हिच इज वेरी डेंजरस। सो यू कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल, अच्छे से अपॉइंटमेंट लेके सब कुछ एक ही विजिट में हो जाए ऐसे प्लान करके, लेकिन कंसल्टेशन के बाद ही टर्मिनेशन की मेडिसिन लिया जाए। ऐसे ओवर द काउंटर फार्मेसी से लेना बहुत जोखिमी है और वो फ्यूचर प्रेगनेंसी पे भी अफेक्ट कर सकता है। तो contact your doctor, contact the doctor and visit hospital and take medicines from the doctor only. It cannot be advisable over phone. Next please. What is telemedicine? जो हमारे यहाँ पे इंडिया में इतना कॉमन पहले नहीं था, लेकिन नाउ वी हैव कम अप, गवर्नमेंट ने भी अप्रूव कर दिया है कि टेलीमेडिसिन मतलब कि हम फोन पे पेशेंट को सिम्टम्स सुन के एडवाइस कर सकते हैं, मेडिसिन एडवाइस कर सकते हैं सिम्टम्स के आधार पे, जिससे पेशेंट के विजिट्स टू द हॉस्पिटल थोड़े कम हो जाए। तो उसके लिए जैसे प्रेगनेंसी के दरमियान जो रूटीन विजिट्स होती है उसके बीच में भी छोटी छोटी कंप्लेंट्स रहती है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल रश करना जरूरी नहीं है। आप फोन से कंसल्टेशन कर सकते हो, यू कैन गाइड यू ओवर फोन, मेडिसिन की हम एडवाइस कर सकते हैं और it will definitely help, it helps people क्योंकि unnecessary outing and unnecessary going to the hospital avoid होता है। So this was all about pregnancy and COVID. In short, pregnancy is a good period. Enjoy it rather than getting panic from the COVID, because this pregnancy is not going to come back. And be happy and any queries you can ask us anytime. We are there to help you, to serve you, and stay healthy. Thank you. Thank you so much, Dr. Prerna. I'm sure सारे patients को बहुत information मिल गई and सारे लोग अभी घर में बैठ के शांति से सांस ले रहे होंगे कि बहुत सारे questions answer हो गए। तो अभी आगे चलते हैं डॉक्टर रिद्धि के पास एंड डॉक्टर रिद्धि हमारे साथ बात करेंगी प्रेगनेंसी में खाने पीने के बारे में, जो आई थिंक बहुत सारे मदर्स को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वेलकम डॉक्टर रिद्धि, थैंक यू एंड we'll get you started. Thank you. Can you hear me? Yes, am I audible? All right, fine. So hi viewers, my name is Dr. Riddhi Nanda. I'm a nutrition consultant at Motherhood and Midas Touch Hospital. So first of all, I really want to thank Dr. Anand and Cord Life for organizing this event. जैसे डॉक्टर आनंद सर ने बताया कि हम लोग यूजुअली प्रेगनेंसी एंड न्यूट्रिशन के बहुत सारे पहले इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते ही थे टू एजुकेट प्रेग्नेंट फीमेल्स, बट अभी ये पैंडेमिक की सिचुएशन में दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम कॉड लाइफ. So I'm sure a lot of people would be benefited out of this, and Dr. Prerna ने बहुत अच्छी information दी है ताकि
सब लोग की थोड़ी एंजाइटी कम हो, तो चलो अभी जो टॉपिक है मेरा कि न्यूट्रिशन के बारे में, आई एम श्योर जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एंड हमारे कल्चर में स्पेशली प्रेगनेंसी एंड फूड गोज डेफिनेटली हैंड इन हैंड। तो सबसे पहले चलो प्रेगनेंसी को समझते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रेगनेंसी को नहीं समझेंगे हमें उसकी रिक्वायरमेंट की भी ज्यादा पता नहीं चल पाएगा। सो प्रेगनेंसी को समझने के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, दैट इज अ प्लांट। सो यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि जैसे पौधे को बड़ा होने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसकी जमीन। सो जब तक फर्टाइल जमीन नहीं है उसके ऊपर कोई भी पौधा ग्रो नहीं कर सकता। सो वैसे ही जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनका यूटेरस, जब यूटेरस की हेल्थ बहुत अच्छी होती है तभी ही प्रेगनेंसी कंसीव हम कर सकते हैं। सो एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, यहाँ पे जो हमारे साथ है प्रेग्नेंट फीमेल्स, वो उनके बॉडी में, उनके यूटेरस में अभी बेबी का इम्प्लांटेशन हो गया है। बट जैसे एक पौधे में बीज डालने से, आई मीन जमीन में बीज डाल देने से सिर्फ वो पौधा ग्रोथ एंड डेवलप नहीं कर सकता, उसकी हर रोज हमें केयर लेनी पड़ती है, उसको नर्चर करना पड़ता है। हवा है, सनलाइट है, पानी है, एंड वहां पे भी हाउ टू मेक श्योर कि वो एरिया क्लीन है, थोड़े ज्यादा फर्टिलाइजर्स भी डालने पड़ते हैं, तब जाके वो जो प्लांट है छोटा सा वो फुल ग्रोथ एंड पोटेंशियल से आगे बढ़ सकता है, उसका पूरा डेवलपमेंट हो सकता है। सो प्रेगनेंसी भी कुछ ऐसा ही फेज है कि जहां पे एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, डेफिनेटली ये सेल डिवीजन की प्रोसेस है कि जहां पे हम लोग डीएनए के डिवीजन के बारे में बात करते हैं कि बहुत ज्यादा सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वो डिवीजन होते हैं एंड फिर उसमें से ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स एंड सब कुछ बनता है। बट वो बनने के लिए मेन इंग्रेडिएंट्स, सो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि फूड प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डेफिनेटली जैसे पौधे को बड़े होने के लिए फर्टिलाइजर्स, हवा, पानी, सनलाइट सभी की जरूरत है, वैसे हमारे बच्चे को भी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सारे फर्टिलाइजर्स यानी फूड की जरूरत है। बट वो फूड कैसा होना चाहिए जहां पे उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो, वो बहुत मैटर करता है। सो हमारी सोसाइटी में काफी सारे मीट्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा मीट है कि अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूं तो मुझे 2 जनों के लिए खाना है। एंड ये सिटी लाइफ में बहुत कॉमन है, घर में बड़े होते हैं वो भी बोलते हैं फीमेल्स को कि अभी आप 2 जनों के लिए बेटा आपको खाना है। डेफिनेटली यहाँ पे एक थिन लाइन है। सो 2 जनों के लिए खाना है, नॉट इन द सेंस ऑफ कैलोरीज कि पहले आप लंच में 2 रोटी खाते थे तब ऑल ऑफ अ सडन आप 4 रोटी खाने लगो, आप अपनी क्वांटिटी डबल करो। नो। सो प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। देयर आर 3 ट्राइमेस्टर्स इन प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अभी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आपकी जो फर्स्ट सोनोग्राफी में अगर आप देखते हो कि बेबी एकदम डॉट की जैसा दिखता है, एंड एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ आपका बेबी का पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको दिखने लगता है। तो इट इज द फास्टेस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज हैपनिंग। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खाने के रोल में क्या है कि आपकी कैलोरीज +1 किलो कैलोरीज की भी रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती है। सो पहले जितनी कैलोरीज में आपका बॉडी सरवाइव कर रहा था उतनी ही कैलोरीज हमें चाहिए ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन, मिनरल्स। सो विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए। सो विटामिन ए का फंक्शन अगर थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में देखें तो विटामिन ए का फंक्शन है विजन डेवलप करने के लिए। विटामिन डी कॉम्प्लेक्स जो ब्रेन एंड बॉडी को कनेक्ट करता है, पूरे जो भी मेटाबॉलिज्म रिलेटेड पूरे फंक्शन है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होते हैं, जिसमें B1 से लेके B12 तक सारे विटामिन आ गए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं।
उसके अलावा मिनरल्स में सो कैल्शियम हम सबको पता है, एंड आई एम श्योर सब लोगों ने कहीं ना कहीं सुना है कि प्रेगनेंसी में दूध तो पीना बहुत बहुत नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ मिल्क में से ही हमें कैल्शियम मिलता है। यस, डेफिनेटली मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, बट दैट इज नॉट अ लिमिटेड। ये एक ही ऐसा नहीं है जिससे हमें कैल्शियम मिलता है। सो डेफिनेटली मैं सोर्सेस के बारे में भी बात करूंगी, बट अभी के लिए जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सेलेनियम, जिंक, ऐसे 100 टाइप के मिनरल्स होते हैं जिसकी प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। सो टोटल 144 न्यूट्रिएंट्स हमें हर रोज देने पड़ेंगे हमारे बॉडी को एंड हमारे बेबी को, ताकि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। बट हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं हमारा इंडियन फूड it is very rich in carbohydrates. See, there is nothing wrong with the carbohydrates, but balance is the key. Carbohydrates यानी सिंपल जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है। सो हमारे बॉडी की टोटल रिक्वायरमेंट 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। ओके, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल कि हम लोग गेहूं का आटा गूंथे, उसमें से एक गैस स्टोव पे हम लोग रोटी बनाए, दूसरी साइड हम लोग अगर खाखरा बनाए, सो रोटी में से हमारा पेट ज्यादा भरेगा, हमारे बॉडी को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंपेयर टू खाखरा। क्यों? क्योंकि नेचर का लॉ है कि जिस हिसाब से जितना फूड को जितना प्रोसेस करोगे, रिफाइन करोगे, उसके उतने न्यूट्रिएंट प्रोफाइल डाउन होगी। इसलिए आपका खाना देखो, नेचर तो हमें ऐसा ही खाना दे रहा है जो बैलेंस है। वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है। सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे विटामिन मिल रहे हैं कि नहीं, मुझे मिनरल्स मिल रहे हैं कि नहीं। बट इन टूडेज एरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना, उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस करके खा रहे हैं। रिफाइंड फूड कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ द रिफाइंड फूड कंजप्शन इज कि उसमें न्यूट्रिशन प्रोफाइल, विटामिन एंड मिनरल्स जो कुदरत ने डाले हैं वो बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। इन जितने कम न्यूट्रिएंट्स हम खाएंगे उतने ही कम बेबी को मिलेंगे। सो प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी इज अ हाईली डिमांडिंग फेज। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अभी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो बढ़ रही है दैट इज फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सारी चीजों की। आयरन की रिक्वायरमेंट 50% ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बेबी अभी आपके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ गया है। सो पूरा ब्लड सप्लाई की प्रोसेस वहीं से ही हो रही है। सो बॉडी को ब्लड सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, एंड ब्लड का फोरमोस्ट कंटेंट है दैट इज आयरन। बट हीमोग्लोबिन, सो ज्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। पहले 12-13 की कैटेगरी में रहता था, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 12, 11, 10 की कैटेगरी में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, बट हमारा सप्लाई कहीं ना कहीं कम हो रहा है। सो हीमोग्लोबिन बनने के लिए सिर्फ आयरन की जरूरत नहीं होती, उसके साथ साथ आयरन, विटामिन B12, प्रोटीन एंड फॉलिक एसिड, ये चारों कंटेंट जब इकट्ठा होते हैं तब जाके हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। सो हीमोग्लोबिन इज द फर्स्ट मोस्ट रिक्वायरमेंट, एंड यहाँ पे ही गड़बड़ी शुरू हो जाती है। इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अभी तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, फीमेल्स की कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, खाने का कुछ मन नहीं करता, ऑल दैट थिंग। सो सबसे पहले व्यूअर्स एक बात समझिए कि प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। फिजियोलॉजिकल यानी नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ। भगवान ने फीमेल की बॉडी की रचना ही ऐसे की है कि हम चाइल्ड बेयरिंग एज में प्रेग्नेंट हो सके। सो ये बहुत आराम से जाने वाला फेज होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये डिजीज के जैसे हमें सिम्टम्स देने लगा है आजकल। अगर हम हमारे दादी नानी, हमारे एंसेस्टर्स का एग्जाम्पल ले, सो उन लोग को तो ऐसी कोई कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा नहीं होती थी। वो उतना ही ज्यादा काम करते थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना काम वो प्री प्रेगनेंसी भी करते थे। सो उनकी लाइफ में कोई मेजर चेंजेस नहीं आते थे, इसीलिए भी कहीं ना कहीं उन लोग की प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से बीत जाती थी,
एंड बच्चे बहुत हेल्दी 3-3.5 kg के आराम से आते थे। आजकल की सिटी लाइफ में क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो फीमेल्स कुछ ज्यादा ही डर डर के रहने लगी है। दे टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। से प्रेगनेंसी में डेफिनेटली फूड का रोल 70% आई वुड से है, बट लाइफस्टाइल का रोल बहुत बड़ा है। सो लाइफस्टाइल इन द सेंस कि अगर आप बहुत अच्छा खाना खाओगे बट अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो खाना कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, एंड डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना कभी आपको पोषण नहीं दे सकता। सो अंडरस्टैंड वन फिनोमेना कि न्यूट्रिशन मीन्स पोषण, एंड पोषण कुदरत सारी चीजों में भर भर के डाल रही है। हमें ना ही कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स की जरूरत है। डेफिनेटली अगर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है एंड वो आपको सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे फॉलिक एसिड, बहुत नॉर्मल रिजीम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट दिए ही जाते हैं। सो प्लीज टेक द सप्लीमेंट्स एज विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर गायनेकोलॉजिस्ट, बट एक्स्ट्रा कि मैं ये ले लूं, सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। आपका खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए। सो न्यूट्रिशन जो पोषण है, हमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इंडियन खाना इज एनीवेज वेरी वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो हमें वो सोर्स ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। एंड जिस हिसाब से हमारे घर में ऑयल एंड घी का इस्तेमाल होता है तो हमें फैट भी अच्छे से ही मिल जा रहा है। बट यस, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गुजराती कल्चर में एंड ऑल ओवर इंडिया के कल्चर में देखा जाता है कि जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, शीरा एंड सुखड़ी एंड घी वाली चीजें लथपथ खाना शुरू हो जाता है। See, I'm not against the ghee. Ghee is very, very important, part of our daily food. हर रोज आपको घी लेना ही चाहिए 2 से 3 चम्मच। बट जो हम लोग शीरा खाते हैं, अगर उसमें शुगर जा रहा है, घी जा रहा है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में जा रहा है। तो इससे क्या होगा, बेबी की अभी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो रिक्वायरमेंट सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बढ़ी है, बट आप क्या दे रहे हो, मैक्रो, यानी आप कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट ही दिए जा रहे हो। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही फीमेल का वेट गेन इतना ज्यादा शुरू हो जाता है। सो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही इतना ज्यादा वेट गेन हो गया, सो बाय द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर आराम से 15-20, वी हैव सीन फीमेल्स का वजन 25 तक भी बढ़ जाता है। सो आपका वजन हमें नहीं बढ़ाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट ज्यादा कैलोरी ही आपको दे रहा है। सो आपका आउटपुट इतना नहीं है एंड इनपुट बहुत ज्यादा है, तो आप वेट गेन कर रहे हो। बट कहीं ना कहीं जहां पे आप वेट गेन कर रहे हो, बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा है। यस, अंडरस्टैंड दिस वन थिंग वेरी वेरी सीरियसली। लोगों को लगता है कि मैं जितना ज्यादा खाऊंगी, फीमेल्स को वो कांस्टेंट नीबलिंग करते रहते हैं हर 1 घंटे में, कभी ये खा लिया, कभी ये खा लिया। सिटी पॉपुलेशन में ये बहुत कॉमन है, कांस्टेंट नीबलिंग होता है। सो अभी तो एक चीज बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुई, दूसरी डाल दी, तीसरी डाल दी। इसकी वजह से डाइजेशन के प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एंड कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी एंड हेडेक, ये कंप्लेंट्स ऑलमोस्ट 5 में से 4 फीमेल्स को होती ही है। So indigestion can never ever give you nutrition. So सबसे important thing is कि आपको during pregnancy constipation नहीं ही होना चाहिए। अगर आपको constipation, गैस या एसिडिटी का इश्यू है, you need to consult a nutritionist. Because आप जब गायनेकोलॉजिस्ट को बोलेंगे, उन लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है rather than giving you the prescription of medicine. बट ये लाइफस्टाइल का इशू है, आप क्या गलत खा रहे हो, कैसे कॉम्बिनेशन में खा रहे हो, कौन से टाइम पे खा रहे हो, ये एनालिसिस करने का काम एक न्यूट्रिशनिस्ट का होता है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड इस टाइप का जहां पे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट वाला खाना जैसे मैंने बोला, तो फिर क्या होगा कि आपका वेट गेन ज्यादा हो रहा है, बेबी का नहीं हो रहा है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के जमाने का कि बेबी लो बर्थ वेट आ रहे हैं। यस, 2.5 kg,
2.25 kg, 3.25 kg, कम से कम बेबी का वजन 3 से 3.5 की कैटेगरी में होना चाहिए. एंड आइडियली इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. न्यूट्रिशन साइंस सेज दैट कि आप अपने बेबी का क्रिएशन खुद कर सकते हो. कैसे? तो कि ऐसा खाना देके जिससे बेबी नर्चर हो सके, जिससे बेबी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, तो वो आराम से 3-3.5 kg का हो ही जाएगा. यहाँ पे सबसे बड़ा सेकेंड ट्राइमेस्टर से एक रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी चेंज होती है, दैट इज अ प्रोटीन. सो जितनी भी इंडियन आपकी हाइट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी हाइट है 152 टू 155 टू 158 सेंटीमीटर, जो नॉर्मली एवरेज इंडियन फीमेल की होती है. सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपकी हर रोज की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है अराउंड 50 टू 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे, और वो आराम से आपके खाने में से आपको मिल जा सकती है. बट यस, आप अपनी थाली कैसे सजाते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर फॉर एग्जाम्पल गुजराती लोगों की बात करूं तो हमारे घर में सुबह, दोपहर और शाम को बस गेहूं 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 ही होता है. रोटी, पराठा, थेपला, द वैरायटीज ऑफ गेहूं. सो ये जो गेहूं है, इट इज वेरी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पर वहां पे प्रोटीन बहुत कम है. सो आपको ऐसे ग्रेन सेलेक्ट करने हैं, ऐसे पल्सेस लेने हैं, ऐसी दालें लेनी है, डेफिनेटली डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीजें मिला के आपका प्रोटीन कंटेंट, आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है 50 टू 52 ग्राम्स इन अ फर्स्ट ट्राइमेस्टर. सो वो हमें देनी ही देनी है. देन सेकेंड ट्राइमेस्टर की रिक्वायरमेंट है कि plus 23 grams of protein on daily basis. So 50 plus 23 grams. So imagine 70 grams of protein की requirement minimum हो जा रही है second and third trimester में. But हमारा खाना तो बहुत ज्यादा घी और अनाज से ही लथपथ है. सो वहां पे इसलिए मदर का वेट ज्यादा गेन हो रहा है एंड बच्चों का नहीं हो रहा है. अभी प्रेगनेंसी इज ऑल्सो कैपेसिटी दी है कि मदर के बॉडी में से सब कुछ खींच के अपना काम कर ले. सो अगर आप प्रेगनेंसी के फेजेस के अनुसार उसकी जो डिमांड है कि जैसे सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 70 टू 72 ग्राम्स प्रोटीन फूड में से वो नहीं सप्लाई हो रही है, तो बेबी सब कुछ आपके मसल्स में से सक करना शुरू करेगा, बिकॉज आपके मसल्स प्लम्पी है विद द वाटर एंड प्रोटीन एंड एवरीथिंग. सो वैसे ही आपकी हड्डियों में से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस सारे मिनरल्स खींच के निकाल लेंगे. सो यहाँ पे क्या होगा फिर कि आपकी बॉडी में से सब कुछ सक हो रहा है, तो आपका बॉडी रिएक्ट करेगा. आपको बहुत ज्यादा थकान लगेगी, आपको हेडेक होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको कहीं पे डिप्रेशन होगा. देयर आर एन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स. एंड 6 या 7th मंथ आते आते तो इतनी बड़ी सूजन दिखनी शुरू हो जाती है पाँव में. सो फिर घर में बोला जाता है कि प्रेगनेंसी में तो सूजन कॉमन है. आइडियली सूजन कॉमन नहीं है, प्रेगनेंसी में एडेमा कॉमन नहीं है, अनलेस एंड अनटिल किसी की मेडिकल कंडीशन है. बट नॉर्मली सूजन क्यों आती है? या तो आप बहुत ज्यादा रेस्ट करते हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है. द मेजर प्रॉब्लम इज कि प्रोटीन डेफिशिएंसी. सो हमारा खाना जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया कि 70 ग्राम तक प्रोटीन जाना चाहिए और प्रोटीन डेफिसिट है आपका खाना, तो फिर डेफिनेटली आपको सूजन आना शुरू हो ही जाएगा. सो प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना. यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई हमें उस हिसाब से बढ़ाना ही पड़ेगा. अगर सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तो फिर बेबी सब कुछ आप में से ही निकालना शुरू कर देंगे. सो मेरी खास रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं ना कहीं कोई भी क्वेश्चन है, आप न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें समझने के लिए कि क्या मेरा खाना प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं. देखो, पहले के जमाने में न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स के पास फूड विजडम बहुत अच्छी थी कि प्री प्रेगनेंसी क्या खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, प्रेगनेंसी के बाद क्या खाना चाहिए. बट ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम लोग कहीं ना कहीं फूड विजडम खो चुके हैं. हमें ये तक नहीं पता कि ये विरुद्ध आहार क्या होता है, कौन से कॉम्बिनेशन में खाना खाना चाहिए. द बेस्ट एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू इज मिल्क शेक. लोग बहुत ज्यादा मिल्क शेक पीते हैं कि भाई फ्रूट भी हेल्दी है एंड मिल्क भी हेल्दी है.
बट मिल्क एंड फ्रूट को कभी इकट्ठा नहीं कर सकते. दे आर कमिंग फ्रॉम विरुद्ध प्रकृति फूड. सो ऐसे विरुद्ध आहार जितने ज्यादा आपके बॉडी में जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी. तो अभी जैसे डॉक्टर प्रेरणा बता रहे थे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोविड केयर कैसे करनी है. सो बेसिकली कोविड से बचने के लिए हमारा सबसे बड़ा वेपन क्या है? इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा वेपन है कि आपका खाना न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी हो. डेफिनेटली. सो आज के जमाने में हमें सबको पता है कि हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है, बट ये नहीं पता है कि कौन से टाइम पे क्या लेना चाहिए, कौन सा विरुद्ध आहार है, कौन सा रॉन्ग कॉम्बिनेशन है. काफी सारे पेशेंट्स का मैं जब हिस्ट्री लेती हूँ तो देखती हूँ कि सुबह का उनका नाश्ता होता है जैसे चाय प्लस नाश्ता या दूध के साथ नाश्ता. देखो, चाय के साथ अगर आप नाश्ता कर रहे हो तो चाय में जो टेनिन है वो कभी आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं करवा सकता. सो फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह पोहे खाए तो पोहा इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, बट चाय के साथ खाया तो वो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा. सो आप खाना खा रहे हो बट अंदर सिस्टम क्या चल रहा है, कौन से कॉम्बिनेशन में जा रहा है, बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना यूटिलाइज कर रहा है, वो तो आपको नहीं पता होगा. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट कॉम्बिनेशन करो और थोड़ा मेटाबॉलिज्म आपका इस हिसाब से जाए कि आप दो दो घंटे का यूजुअली गैप रखो. सो एवरी 1 आवर फ्रीक्वेंट नीबलिंग ना करो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीबलिंग एंड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वी रिकमेंड कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स करो. हर 2 घंटे पे, हर 3 घंटे पे थोड़ा खाओ ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे. एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाटर इनटेक पे आप ज्यादा अपना फोकस करो. पानी अच्छे से पियो, तब जाके आपको मेटाबॉलिज्म का भी कोई इश्यू नहीं होगा. सो इस हिसाब से प्रेगनेंसी जो आपकी है वहां पे सिर्फ क्या खाना है क्या नहीं खाना है उससे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट कि प्रेगनेंसी की आप नीड समझो. सो प्रेगनेंसी की जो नीड है वो हर एक मंथ में चेंज हो रही है. जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो हो रहा है वैसे वैसे बेबी की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है. सो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है. सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कैलोरी इंटेक शुड बी प्लस 350 कैलोरीज. यस, बहुत कम कैलोरीफिक वैल्यू का इंपॉर्टेंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्लस 350 यानी इट्स हार्डली योर रोटी सब्जी एंड दाल. So 350 can be coming from जो भी आप खा रहे हो आराम से 350 प्लस हो जाएगा. बट सोर्सेस आप क्या चूज करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बहुत ज्यादा वेट गेन ना हो वो भी देखना बहुत जरूरी है. अगर आप अंडर वेट की कैटेगरी में हो तो आपका कम से कम 14 to 16 kg वेट गेन होना भी जरूरी है. ओबेसिटी की कैटेगरी में है तो वहां पे हमें थोड़ा लिमिट करना पड़ता है, बिकॉज अगर आप ओबेसिटी की कैटेगरी में हो और आपका वजन और 15-20 किलो बढ़ गया तो फिर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज जिसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ना, प्री-एक्लेम्शिया एंड फिर प्रीमेच्योर बेबीज आना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं. सो 9 महीने हमारी प्रेगनेंसी रहे, बच्चा एकदम हेल्दी आए, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है. प्रेगनेंसी इज द बेस फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग. जैसे जब बिल्डिंग बन रही है तो उसका बेस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है बेबी की ये 9 महीने की जर्नी. ये 9 मंथ्स में आपका फूड हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस जा रहा है. आपका स्लीप साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम से सो टाइम से उठो. प्रेगनेंसी में फीमेल्स रात को 12-1-2 बजे तक जगती रहती है क्योंकि सुबह लेट उठना है, अभी कोई इतनी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है. नहीं, आपको रात को 10:30-11 बजे तक सो जाना है, सुबह आपको जल्दी उठना है, तब जाके आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बैलेंस रहेगा. Third thing is a physical activity. So make sure 30 to 40 minutes of walk a day. प्लस थोड़ा प्राणायाम कीजिए ताकि स्ट्रेस मैनेजमेंट हो. जो एंजाइटी की बात हुई थी, जो डॉक्टर प्रेरणा ने बात करी, सो एंजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप थोड़ा प्राणायाम करो.
अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है. 20 minutes of pranayam will give you a good relief. ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो आपका हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा रहेगा एंड आपकी मेटाबॉलिज्म भी अच्छी रहेगी. फोर्थ इज वाटर इनटेक, जैसे मैंने बोला है, एंड फिफ्थ इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एंड प्राणायाम करोगे तो आपका स्ट्रेस भी मैनेज रहेगा. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉट ओनली फूड बट आपकी लाइफस्टाइल मैनेज करने की जरूरत है. तो पहले जैसे भी आप जीते थे, अभी आपके ऊपर एक ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो प्लीज टेक दिस वेरी सीरियसली एंड इम्पोर्टेंटली. इतना कैजुअली भी मत लीजिए कि ठीक है प्रेगनेंसी है, या फिर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके भी ना जिए. बैलेंस इज द की. सो नॉर्मली सारी एक्टिविटी करनी है. आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब करो, आप घर में काम कर रहे हो तो सारे काम करो, बट जैसे ही आपके गायनेकोलॉजिस्ट इस हिसाब से आपको एडवाइस दे रहे हैं उस हिसाब से करना है. यस, एंड नॉर्मल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में जैसे ये 5 फैक्टर्स है उस हिसाब से आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा हेल्दी एंड हैप्पी रहेगी. एंड ऐसे ही वाइब्स बेबी को मिलेंगे तो बेबी बहुत हेल्दी एंड हाई इन इम्यूनिटी आएंगे. बेबी का वजन आराम से 3-3.5 kg का आएगा. So during pregnancy, my utmost advice is कि please make sure your lifestyle is good, not just your food. And if you have any question, any query, you can definitely contact us at the Motherhood Hospital. We are there to help you, to guide you, and we will be happy to serve you. I wish you all a very happy pregnancy. And जो new mothers है उनको congratulations. And yes, so as of now I'm done here. Sonali, thank you for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Riddhi. Thank you for all the nutrition related information. I'm sure mothers को इससे बहुत help हुई होगी. अभी हम move करते हैं lactation वगैरह में. Actually थोड़ा सा अभी समय की पाबंदी होने के chances हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि हम ये सारे आपके जो अगर सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं जो आएंगे चैट विंडो में, हम जरूर आंसर करें. बट अगर बाय चांस थोड़ा टाइम कम हो गया तो डॉक्टर्स ये क्वेश्चंस आपको आंसर करके कॉड लाइफ के द्वारा डॉक्यूमेंट बना के भेज देंगे. तो डोंट वरी, आपके क्वेश्चंस जरूर आंसर हो जाएंगे क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6 o'clock हो गया और हमारे मदर्स काफी टाइम से बैठे हुए हैं. तो हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, लैक्टेशन. बट इससे पहले जो सारे मदर्स एक जगह पे बैठे हुए हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा स्टैंड हो जाइए, खड़े हो जाइए इमीडिएटली. राइट, खड़े होके थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच कर लीजिए. थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए, जैसे आप अपने आप को इस तरह, थोड़ा सा इस तरह, थोड़ा सा शोल्डर्स को टर्न कर लीजिए. राइट, थोड़ा सा दूसरी तरफ टर्न कर लीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए. राइट, बिल्कुल स्ट्रेच होके आप अभी अब फिर से आपको बैठना है. थोड़ी सी देर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, जितना हो सके एंटरटेनमेंट आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू बताऊंगी. राइट, तो जैसे मैंने आपको कहा शुरू में, ये सेशन आपको कॉड लाइफ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है. एंड मेरा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग, जो बहुत जरूरी है. डॉक्टर प्रेरणा ने भी स्ट्रेस किया कि इवन कोविड के दौरान ब्रेस्ट फीड करना WHO ने भी रेकमेंड किया है. और बेबी के आने के बाद क्या चेंजेस हो जाते हैं और क्या आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में अब थोड़ी सी बातें करते हैं. पहला सवाल तो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क क्या मुझे ये देना चाहिए? अगर आप मेरा ये पिक्चर देखोगे लेफ्ट में, तो मैंने ये जानबूझ करके गोल्डन कलर का बनाया है. ब्रेस्ट मिल्क को हम लिक्विड गोल्ड बुलाते हैं. ये इतना जरूरी है. अगर आपके पास सोना है तो आप उसको संभाल करके कबर्ड में रखते हो. कोई भी अच्छी सी ओकेजन होती है तो हम सोना खरीदते हैं, उसको हम शुभ मानते हैं. तो ब्रेस्ट मिल्क इज ऑल्सो लिक्विड गोल्ड एंड ये बेबी के लिए और मदर के लिए डेफिनेटली राइट चॉइस है. मैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में या ब्रेस्ट मिल्क के बारे में जितना बोलूं वो कम है. आप अगर मेरी तरफ से गूगल पर जाकर कोई भी वेबसाइट देंगे, एंड जस्ट एज अ पॉइंट, ये मैं शुरू भूल गई कि सेशन के एंड में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी है. तो जाइएगा नहीं, क्योंकि ये गिफ्ट आपको एंड में मिलेगा.
राइट? तो एक वाउचर है जो आप शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एंड इसके बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी, ठीक है? तो ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं, एंड बोलने के लिए तो 101 फायदे बता सकती हूँ, तो उसमें नहीं जाएंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट ये रहता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो आपके बेबी के लिए बिल्कुल सही हजम हो जाता है, डाइजेशन उसका एब्सोल्युटली ऑप्टिमल रहता है, एंड इसमें इम्यूनिटी बनती है, इसमें एलर्जीज नहीं होती, एंड ओवरऑल मदर का भी जैसे वेट लॉस वगैरह है वो डिलीवरी के बाद जल्दी से हो जाता है। बहुत जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपको पता होनी चाहिए और आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए। पहला जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो, आप बेबी को अपने ब्रेस्ट पे लगा दीजिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स को चेक करना जरूरी है, तो डॉक्टर बेबी को चेक कर ले, उसके बाद 5-7 मिनट्स में जैसे ही बेबी का चेकअप हो जाता है, आप बेबी को अपने ब्रेस्ट पे लगा दीजिए। सोचने की बात यह है कि आपका बेबी आपके स्टमक से आ रहा है, जहां पे बिल्कुल शांत वातावरण है, अंधेरा है, बिल्कुल स्नग एनवायरनमेंट है। अभी सडनली उसको एक नए एनवायरनमेंट में आ गए हैं, तो वो बिल्कुल डरे हुए रहते हैं। जब वो मदर के चेस्ट पे आते हैं तो मदर की हार्ट बीट सुनते हैं जो पिछले 9 महीने से सुन रहे हैं, और मदर की स्मेल, ये सारी चीजें उनको बिल्कुल शांत और रिलैक्स कर देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि बेबी के मेंटल वेलबींग के लिए आप बेबी को अपने चेस्ट पे जितना जल्दी हो सके विद इन द फर्स्ट 1 आवर आफ्टर डिलीवरी जरूर लगाइए। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि बेबी का जो लैच होता है बिल्कुल सही होना चाहिए। अब ये मैं आपको ब्रेस्ट का मॉडल दिखा देती हूँ। अगर आप ब्रेस्ट को अंदर से देखेंगे, ये आपको कभी नहीं देखने मिलेगा, ये मैं दिखा देती हूँ। ब्रेस्ट का मॉडल अगर आप अंदर से देखते हो तो ये आपका ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। जो ये आपने रेड डॉट्स देखे हैं वो आपके ब्रेस्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट्स है, एंड फिर उसमें से छोटे छोटे पाइप्स इसको आपके एरियोला के पीछे ले जाते हैं। अभी एरियोला है जो आपके ब्रेस्ट का डार्क हिस्सा है, निपल का भाग है, बट ये जो निपल के इर्द गिर्द हिस्सा है इसको हम एरियोला बोलते हैं। तो अब ये जो आपके पाइप्स हैं वो एरियोला के पीछे आए हैं, निपल में नहीं आए। अगर आपके बेबी ने निपल को पकड़ा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जनरली बेबी फिर आपको इस तरह से बाइट कर देगा, और उसकी वजह से आपको पेन, डिस्कम्फर्ट, सोर निपल्स वगैरह हो जाते हैं। बट अगर बेबी अपना मुंह अच्छे से खोलता है और पूरे एरियोला को, जितना ज्यादा एरियोला वो ले सके, इस तरह से ब्रेस्ट को दबाता है, तो आपके मिल्क जो है वो निपल से बाहर आके बेबी के माउथ में चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि बेबी का माउथ बिल्कुल अच्छे से खुला होना चाहिए, और जब बेबी फीड करे आपको पेन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, अपने कंफर्ट के बारे में जरूर सोचें। जितने पिलोस चाहिए प्लीज ले लीजिए। अगर आपका बैक टेढ़ा है, आप बेंड कर रहे हो, आप बेबी को कंफर्टेबली नहीं पकड़ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली फीडिंग में दिक्कत आएगी। तो अपने आप को कंफर्टेबल करना मत भूलिए। बहुत जरूरी है याद रखना कि जितना आप ज्यादा फीड करोगे उतना ज्यादा दूध बनेगा, राइट? तो अगर आपने बेबी को फीड नहीं किया तो मिल्क बनना शुरू होगा ही नहीं, और लेटर भी जैसे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग आगे बढ़ती है, मिल्क प्रोडक्शन है आपके स्टिम्युलेशन पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप समझ सकते हैं ये क्या है? ये आपके बेबी के पेट का साइज है जब आपका बेबी पैदा होता है। तो इसीलिए अगर आपका ब्रेस्ट कुछ ही बूंदे दूध बना रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेबी का स्टमक अभी बहुत छोटा है। लेकिन बेबी का स्टमक बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाता है। तो अगर हम बेबी का स्टमक चौथे या 5वें दिन पे देखेंगे तो इतना फर्क है। और अगर माँ का दूध नहीं बनना शुरू हुआ तो बेबी को बाहर के दूध के ऊपर रिलाई करना पड़ता है, हमको फॉर्मूला मिल्क देनी पड़ती है। तो अगर माँ को मेहनत करनी है तो शुरू से करनी है, चौथे 5वें दिन पे नहीं। मुझे पता है आपकी डिलीवरी हुई है, आप थके हुए हो वगैरह वगैरह, लेकिन ये काम आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर आपको अपना मिल्क बढ़ाना है तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। दिन में कम से कम 10 से 12 बार आपको बेबी को लैच करवाना है। लैच के ऊपर जरूर ध्यान दें, बिल्कुल मुंह खुला। अगर सिर्फ निपल लिया मुंह में तो फीड बराबर से नहीं होगी। कभी भी बॉटल नहीं देनी है।
अगर आप ब्रेस्ट फीड करना चाहते हैं तो बॉटल फीडिंग से कंफ्यूजन हो जाएगा। बॉटल आसान भी है तो बेबी को उसकी आदत पड़ जाएगी, और हाँ, 1 या 2 बार देने से भी आदत पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ठीक है, 1 बार दे दिया ना, क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं। बॉटल जरा भी नहीं देनी है। जितना आप ज्यादा पानी पी सकते हो उतना बहुत अच्छा। तो दिन में 12 से 14 ग्लास पानी, 12 to 14 ग्लासेस ऑफ लिक्विड आपको दिन में कंज्यूम करने हैं फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। स्ट्रेस और एंजाइटी से जो हार्मोन्स बनते हैं उससे ब्रेस्ट फीडिंग के हार्मोन्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको खुश रहना है। मतलब मैं जनरली मदर्स को ये बोलती हूँ कि नई मदर का, न्यू मदर के 2 गहने हैं, एक उसका बेबी और दूसरा उसकी हंसी। तो अगर मदर स्माइल करती है तो उससे उसका स्ट्रेस लेवल्स भी कम हो जाते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका मिल्क कम है तो पहले बेबी को फीड करिए और फिर उसके बाद मिल्क थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दीजिए। आप अपने बॉडी को सिखा देंगे कि मुझे एक्स्ट्रा मिल्क बनाने की जरूरत है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे हैवीनेस यानी कि एंगोर्जमेंट बहुत आम है। जब पहले मिल्क नहीं होता ब्रेस्ट सॉफ्ट होते हैं, फिर ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं। ये बेबी को पकड़ने में भी तकलीफ देते हैं और फीड करने में तकलीफ होती है। प्लस मदर को हैवी और पेन फील होता है। ब्रेस्ट की मसाज करिए, खुद ही करिए। हल्का वार्म कंप्रेस मतलब गर्म कपड़े से सेक कर दीजिए और फिर बेबी को फीड करिए। इससे इंगॉर्जमेंट जरूर कम हो जाएगी। आम देखा जाता है कि मैं लेफ्ट साइड से फीड कर रही हूँ तो मेरे राइट साइड से मिल्क बह रहा है, लीकिंग ब्रेस्ट। ये भी कॉमन है। आप ब्रेस्ट पैड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट पैड्स को बार बार चेंज करना जरूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट पैड से अगर आपने वेट यानी कि गीला ब्रेस्ट पैड पहना तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। मैंने आपसे ये भी कहा कि आप अगर ब्रेस्ट फीड करेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा। क्या मैंने आपको ये बताया कि इससे आपका पेट भी अंदर चला जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो जो हार्मोन्स आपके बॉडी में रिलीज होते हैं उससे आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। तो इसीलिए आपको एब्डोमेन में पीरियड के जैसे क्रैम्प्स फील होते हैं। इसकी वजह से आपका यूट्रस छोटा हो रहा है, ये नॉर्मल है। अगर आपको पेन हो रहा है या सोर निपल्स हैं तो प्लीज अपने लाज को जरूर ध्यान दीजिए। मैंने आपको के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क डक्ट्स दिखाए, छोटे छोटे पाइप्स दिखाए। अभी इसमें से अगर ऐसे ऐसे मिल्क बहेगा तो ऑब्वियसली थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसे लगेगा कि कुछ गुदगुदी सी हो रही है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। रोजाना ब्रेस्ट की हल्की सी खुद माँ अपने हाथ से मसाज करना चाहिए। जब आप हल्के हाथ से इस तरह सर्कुलर मूवमेंट्स में और फिर कुछ इस तरह निपल की तरफ मसाज करेंगे तो लम्स नहीं बनेंगे। लम्स की वजह से कभी कभी ब्रेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ये आप खुद ही अवॉइड कर सकते हैं घर में, लेकिन ध्यान रखिए ये मसाज आपको खुद करनी है, कोई बाहर वाले से नहीं करवानी है। अगर आप मिल्क निकालना चाहते हैं बेबी के लिए, कहीं आपको जाना है बाहर, कोई इश्यूज है, तो आप 3 तरीके से मिल्क निकाल सकते हैं। हैंड एक्सप्रेशन, यूजिंग मैनुअल ब्रेस्ट पंप या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप। जब आप हैंड एक्सप्रेस करते हो, जनरली मदर्स इस तरह से ब्रेस्ट को खींचना शुरू करती है, इससे मिल्क नहीं निकलता। आपको करना यह है कि आपको अपना जो थंब और 4 फिंगर है एरियोला के बाहर कुछ इस तरह रखने हैं। सेकेंड मूवमेंट जो आप करने वाले हो वो अपने ब्रेस्ट को पीछे की तरफ पुश करेंगे। सो पुश बैक अगेंस्ट द चेस्ट वॉल एंड उसके बाद आप इसको कंप्रेस करेंगे, मतलब अंदर की तरफ इस तरह पुश करेंगे। तो 3 मूवमेंट्स हैं हैंड एक्सप्रेसिंग के लिए। थंब और 4 फिंगर एरियोला के बाहर इस तरह से आप अपने ब्रेस्ट को पुश करेंगे और फिर इस तरह से कॉम्प्रेस करेंगे। सो इट्स पुश बैक और कॉम्प्रेस। जब यहां से मूवमेंट हो गई तो आप अपना हाथ इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। कभी कभार एक्सप्रेस करने के लिए मैनुअल ब्रेस्ट पंप, क्योंकि इसमें कोई मशीनरी और मैकेनिज्म नहीं है तो आसानी होती है, प्लस ऑफ कोर्स रीजनेबल भी है, खर्चा कम होता है।
बार बार एक्सप्रेस करने के लिए जो मदर्स को अगर काम पे जाना है, वर्किंग मदर्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप काफी काम आता है। डबल ब्रेस्ट पंप उन लोगों के लिए रेकमेंडेड है जिनके ट्विन्स हैं, या अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है तो बहुत ज्यादा मिल्क की रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम डबल ब्रेस्ट पंप रेकमेंड करते हैं। क्या ब्रेस्ट पंपिंग पेनफुल है? क्या इसमें बहुत टाइम लगता है? इसका आंसर है सिंपल, बिल्कुल नहीं। अगर आपने सही तरीके से पंप किया तो इसमें आपको टाइम और पेन दोनों ही नहीं होगा। अभी थोड़ी सी बात करते हैं आपके बेबी के बारे में, क्योंकि आपकी मेन फोकस पूरे प्रेगनेंसी में और डिलीवरी के बाद तो आपका बेबी ही होता है। ये सारी चीजों का आप शायद प्रेगनेंसी के दौरान ही ध्यान रखेंगे कि मुझे क्या क्या तैयार करके रखना है। पहली चीज होती है कि बेबी कहाँ सोएंगे। आम देखा जाता है कि बेबीज को हम अपने बिस्तर पे ही सुला देते हैं, मदर और फादर के बीच में, या तो फादर को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और बेबी मदर के साथ बेड पे सोते हैं। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। बेबी को फीड करना आसान हो जाता है, मदर को बेड से उठना नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह, ये तो फायदे हैं। बट बेबी को आदत भी पड़ जाती है और अलग से सोने का प्रॉब्लम जब 6-8 महीने के बेबीज हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आप बेबी को कहाँ और कैसे सुलाएंगे। इतना तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि झूले या पालने में आप बेबी को रात भर मत सुलाइए, क्योंकि अगर उसको झूल के सोने की आदत लग गई तो उसको फिर विदाउट झूला सोना बहुत मुश्किल होगा। जो भी आप चाहें, नैपीज या डायपर्स जैसे भी कपड़े, बेबी को बांधने के कपड़े, कैप्स, मिटन्स और सॉक्स, ये सारी चीजें आपको बेबी के लिए रेडी करके रखनी है। आजकल स्नान वगैरह तो हमको खुद ही कराना है, स्नान और मसाज, क्योंकि बाहर से तो कोई आ नहीं सकता। तो इसीलिए बेडिंग और मसाज इक्विपमेंट जैसे बाथ चेयर्स वगैरह मार्केट में मिलते हैं, ये सारी चीजें अगर आप अरेंज कर लेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा बेबी को स्नान कराने में। बेबी के लिए कुछ और आइटम्स की जरूरत पड़ती है, जैसे साबुन, शैम्पू, और डू यू नो व्हाट, बेबीज जब बॉर्न होते हैं उनके नाखून बहुत लंबे होते हैं, तो फिर सब मदर्स को टेंशन होती है कि मैं मिटन्स पहना दूं, नहीं तो स्क्रैच कर देंगे, कट्स आ जाएंगे। इससे अच्छा बेबी नेल कटर ले लीजिए, इससे बेबी के नेल्स को आप अच्छे से ट्रिम कर सकते हैं। अगर आपको और भी चीजें खरीदनी है, शौक होता है सबका, तो कैरी कॉट, प्रैम और बेबी कैरियर, जैसे बेबी रैप होता है, मतलब जो बेबी को हम कैरी कर सकते हैं आसानी से, ये सारी चीजें आप अरेंज कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने बेबी के बारे में शुरू में ध्यान आएंगी, जैसे कि शेप ऑफ द हेड, और मैं एक एक करके आपको क्विकली ये दिखा देती हूँ। बेबी एट बर्थ, उनका जो सर होता है वो बिल्कुल ऐसे खिंचा हुआ होता है, क्योंकि वो जब वजाइना से बाहर आते हैं, जब पेल्विस से बाहर आते हैं, तो उनके हेड की मोल्डिंग हो जाती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बेबी का सर थोड़ा सा पुल्ड आउट है, थोड़ा सा इस तरह है, तो एक्स्ट्रा पिलोज, एक्स्ट्रा मसाज, इन सब चीजों की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अपने आप नॉर्मल शेप आ जाएगा जब आपके बेबी टर्न हो जाएंगे, जब उनको ग्रेविटी का एडवांटेज मिल जाएगा, उठ के बैठना शुरू करेंगे, तो ये जो सर है वो अच्छे से राउंड हो जाएगा। बेबी के बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं, इसको हम बर्थ हेयर बोलते हैं। इसको खास करके बेसन, मलाई, ऐसी सारी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। बेबी के बाल आसानी से गिर जाते हैं, कई बार सर के भी बाल गिर जाते हैं, और मदर्स को फिर टेंशन आता है कि मेरे बेबी टकला तो नहीं हो जाएगा। बेबी की जो आंखें हैं वो कॉकआइड रहती हैं, ऐसा लगता है कि एक तरफ है, एक दूसरी तरफ है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि उनकी विजन अभी तक डेवलप नहीं हुई। बेबी सिर्फ 8 से 14 इंच तक की दूरी देख सकते हैं। तो जब भी आप अपने बेबी से बात करना चाहो, प्लीज बेबी के नजदीक जाके बात करिए, क्योंकि वो आपकी शक्ल दूर से नहीं देख सकते। अगर आपकी बेबी गर्ल है तो उसके पहले कुछ दिनों में पीरियड्स जैसे कि वैजिनल ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। तो अगर आप इस तरह से स्पॉट्स ऑफ ब्लड अपने बेबी गर्ल के डायपर पे देख रहे हैं, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है।
ये उसका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है। बच्चे की नाभि, जब बच्चा पैदा होता है माँ से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम सेपरेट कर देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके, और फिर इस तरह से एक प्लास्टिक क्लिप लगा देते हैं। इसको सूखने में कम से कम 7 से 10 दिन लगते हैं और ये अपने आप ही गिर जाता है। यहाँ पर आपको कुछ लगाना नहीं है। इसको आप जितना क्लीन और ड्राई रखोगे उतना आपके लिए और आपकी बेबी के लिए बेटर है। जब ये नाभि गिर जाती है तो जो अम्बिलिकस है, जो स्टंप है, वो ऐसे लगेगा कि बिल्कुल उभरा हुआ है। इसको भी दबाने की कोई जरूरत नहीं। तो जैसे बहुत सारे किस्से सुने हैं कि 1 रुपए का कॉइन वहां दबा देते हैं, पूरा नाभि को बांध देते हैं। ये सारी चीजें आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेबीज रोते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऑफ कोर्स फीड के लिए तो डेफिनेटली रोते हैं, बट डायपर गंदा हो गया, थक गए, नींद आ रही है, किसी की शक्ल नहीं पसंद आ रही, बोर हो गए, ये सारी चीजों की वजह से भी रोते हैं। तो बेबीज को अटेंड करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रोने देना चाहिए। पास जाइए, देखिए क्या प्रॉब्लम है। डेफिनेटली उनकी आवाज नहीं खुल रही, वो बिगड़ नहीं जाएंगे, तो रोते हुए बच्चे के हमेशा एक्नॉलेज करके उनके पास जाइए। अभी थोड़ी सी बातें करते हैं मदर के बारे में। इतने सारे चेंजेस हो गए आपके, हार्मोनल चेंजेस हैं। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, डिलीवरी होने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होने के लिए, ये सारी चीजें हार्मोन्स की वजह से होती हैं। मुझे पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं, बट प्रेगनेंसी के दौरान भी आपके थोड़े मूड चेंजेस होते हैं। आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन फील होता है, थोड़ा रोने धोने का मन होता है, थोड़ा आप अनरीजनेबल, इरेशनल जैसे हो जाते हो। ये सारे चेंजेस, और अगर कोई फादर्स भी यहाँ पर हैं तो आपके लिए भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि ये चेंजेस काफी नॉर्मल हैं। तो शुरू शुरू में जो होते हैं उनको हम बेबी ब्लूज बोलते हैं। ये बहुत माइल्ड होते हैं और ये जनरली खुद ही सेटल हो जाते हैं। अगर ये 2-3 हफ्ते में नहीं सेटल हुए तो उसको फिर हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलेंगे। अगर मदर बिल्कुल इरेशनल हो गई है, बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट है, बिल्कुल बेबी के ऊपर बहुत पैरानोया है, या बिल्कुल बेबी का ध्यान नहीं दे पा रही है, तो इसमें मेडिकल अटेंशन या हेल्प की जरूरत है। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड इट। बट इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये काफी सिवियर भी हो सकता है, और एज अ वर्स्ट सिनारियो मदर्स के लिए ये कई बार कुछ महीने भी चल सकता है। तो शुरू शुरू का जो फेज है, वी वांट के मदर को बेबी को एंजॉय करना है। प्रेगनेंसी के बाद जो खुशी आती है वो एंजॉय करनी है, लेकिन ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी कभी हम इस खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते। मॉम में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। पहला तो स्लीप डिप्रिवेशन, नींद नहीं मिलती, हर 2-2 घंटे बेबी को फीड करना है। क्या करें, बेबी का स्टमक ही छोटा है तो फीड तो करना ही पड़ेगा। तो कई बार मदर्स का यही फीलिंग रहता है कि मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं मिल रही है, वो मैं कब सोऊंगी दिन रात के 8 घंटे, इसमें तो टाइम लगेगा। और प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अब सो जाओ, बाद में तो सोने नहीं मिलेगा। बोलना आसान है, लेकिन आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो कि प्रेगनेंसी में मैं बहुत सो लूं और डिलीवरी के बाद में बिल्कुल ना सो। तो ये सारी चीजों को आपको एक्सेप्ट करके चलना है। बहुत मुश्किल है लेकिन करना जरूरी है। जब बेबी सोता है आप भी सारी चीजें छोड़ छाड़ के सो जाओ। बेबी को संभालना खुद में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो आप थके हुए हो, आप एग्जॉस्टेड हो, और ये बिल्कुल नेचुरल है। तो आपको हेल्प लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको हेल्प करना चाह रहा है उसकी आप हेल्प जरूर लो। जो चीजें आप डेलीगेट कर सकते हो वो आप डेलीगेट कर दो। आपको घर का हर काम करने की जरूरत नहीं है। आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप इरिटेबल और इरेशनल भी हो सकते हो। बेबी को संभालते संभालते आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप फेल हो रहे हो, आप बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाते हो, और ये भी एक नॉर्मल फीलिंग है। मदर्स का ये सेंसेशन होता है कि मैं बिल्कुल उस तरह नहीं हूं, मेरे पहले के कपड़े मुझे नहीं फिट हो रहे, और ये बिल्कुल नेचुरल है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यूट्रस को बिल्कुल नॉर्मल शेप और साइज में जाने के लिए कुछ हफ्ते तो लगेंगे।
9 महीने लगे हैं पूरी प्रेगनेंसी होने के लिए, तो कुछ हफ्ते और कुछ महीने अपने आप का बॉडी वेट लूज करना, अब्डोमिनल साइज को वापस रीगेन करने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा. ये शॉपिंग करने का टाइम नहीं है, बट लेकिन अपने आप पे ध्यान देना जरूरी है. तो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं, जो चीजें आप पसंद करते हैं, ये आपको ध्यान से करनी चाहिए. अगर आप मे बी थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करके नेल पॉलिश लगा लीजिए, बाल अच्छे से बना लीजिए, ध्यान करके स्नान वगैरह कर दीजिए, तो ये आपको खुद को अच्छे फील कराएगा. मदर्स के लिए सेक्सुअल इंटरेस्ट ये जनरली बहुत कम रहता है डिलीवरी के बाद, क्योंकि वेजाइनल चेंजेस भी बहुत होते हैं. हार्मोन्स की वजह से वेजाइनल ड्राइनेस, डिस्कम्फर्ट, ये काफी नॉर्मल है. और ओवर एंड अबव दैट एक बेबी आपके बाजू में सोया हुआ है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल फीलिंग है. कई मदर्स को कभी कभी 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं, और इसमें अगर हस्बैंड्स की अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है. कुछ क्विक टिप्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ. जो आप पेरेंट बनने जा रहे हो, आपके लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस है. जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आप रीड कर सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा. तो रीड करिए ताकि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन जमा हो जाए. जितने आपके पास सवाल है, आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, फैमिली मेंबर से पूछ सकते हैं, फ्रेंड से पूछ सकते हैं, लेकिन डिसीजन आपका है. आपकी जो फीलिंग्स है, आप अगर कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो प्लीज बात करो. अगर आप सिर्फ सोचोगे कि मेरे हस्बैंड को मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना चाहिए, उसको पता नहीं चलेगा. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके हस्बैंड आपको कुछ हेल्प करें या आपके लिए कुछ करें, तो आप उनको खुला खुला बोल दीजिए. खुद सब नहीं करना, अपने लिए थोड़ी सी हेल्प की अरेंजमेंट बहुत जरूरी है. हम फॉर्चुनेटली इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे तो पूरी फैमिली जमा हो जाती है. तो अगर आपकी मदर इन लॉ जो भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, उनकी हेल्प ले ही लीजिए. थोड़ा सा एडवांस में प्लानिंग कर लीजिए, थोड़ा सा इमरजेंसीज की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बेबीज के साथ तो हर दिन एक इमरजेंसी होता है. कोई स्केड्यूल नहीं होता, कोई रूटीन नहीं होती. तो इसके लिए थोड़ा एडवांस में प्रिपरेशन एंड प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना, ना अपने हस्बैंड को ब्लेम करना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे प्लान के हिसाब से नहीं होगा. तो इसमें किसी की गलती नहीं है और थोड़ा ऊपर नीचे चलता है. तो अगर आप किसी को भी ब्लेम करोगे तो उसमें नुकसान आपका ही होने वाला है. अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है. कि जो आपको अच्छा लगता है, आपको टीवी शो देखना अच्छा लगता है, किताब पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छे से स्नान करना अच्छा लगता है, जो आपको पसंद आता है. अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप पेंट करना चाहते हैं, आपको कुकिंग पसंद है, तो अपने पसंद की कोई हॉबी के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है. अपने हस्बैंड को मत भूलिए, उसके लिए टाइम निकालना भी बहुत जरूरी है. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमारा बेबी हो जाता है तो हम सिर्फ बेबी की बात करते हैं. जैसे ही हस्बैंड घर पे आते हैं, हमारा मेन कॉन्वर्सेशन यही रहता है कि आज तो बेबी बिल्कुल नहीं सोया, आज तो 6 बार पॉटी कर दी, पता नहीं कितने डायपर चेंज कर चुकी हूँ, वगैरह वगैरह. यस, ये सारी चीजें आपके हस्बैंड जरूर सुनना चाहते हैं, लेकिन इमीडिएटली नहीं, पहले आपके बारे में भी सुनना चाहते हैं. तो जैसे आप अभी प्रेगनेंसी में, बिफोर प्रेगनेंसी एज अ कपल कम्युनिकेट करते थे, उस कम्युनिकेशन को जरूर जिंदा रखिए. एंड जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया, इस सेशन के एंड में मैं आपको ये एक गिफ्ट कूपन देने वाली हूँ. ये हंग्री ब्रेन की तरफ से दिया जा रहा है. ये सेशन जैसे आपको बताया गया है, कॉड लाइफ ने ऑर्गेनाइज किया है डॉक्टर आनंद के साथ अरेंजमेंट में. एंड हंग्री ब्रेन का गिफ्ट कूपन सारे पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने भी आज ये सेशन अटेंड किया है, उनको ये वाउचर दिया जाएगा 1000 रुपीज का. तो कॉड लाइफ के रिप्रेजेंटेटिव अगले 24 से 48 घंटे में आपको कॉल करेंगे और आपको ये वाउचर दे देंगे और सेशन का फीडबैक वगैरह भी लेंगे. प्लस आपको ये रिकॉर्डिंग जो की गई है उसका भी कॉपी ईमेल में शेयर किया जाएगा. एंड कॉड लाइफ की टीम ऑब्वियसली अपना प्रेजेंटेशन भी करना चाहेंगी. तो अगर आप उनका कॉल ले लेते हैं और उनकी प्रेजेंटेशन अटेंड करते हैं, तो मेरी तरफ से जो प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम है ऑनलाइन, ये आपको उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा. राइट? अभी मैं फ्लोर ओपन रखूंगी क्वेश्चंस के लिए.
बट उससे पहले मेरे वेबसाइट का एड्रेस अभी स्क्रीन पे है. मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे हूँ @baby360degrees के नाम से. सो प्लीज मुझे फॉलो करिए क्योंकि मैं वहां पे रेगुलरली बहुत सारी चीजें पोस्ट करती हूँ. और मेरा यूट्यूब का भी चैनल है जहां पर ऑलमोस्ट एवरी वीक एक नया वीडियो आता है. And it's all about pregnancy, babies, and life after baby. So we would love to see you there. So please like, follow, subscribe to all of these places. All right. Thank you very much. And now the floor is open to questions. I will also check and yes. So any questions? You can please put in the question box on the side of the screen. So far, there are no questions yet. Any questions from the participants? We have Dr. Prerna, Dr. Riddhi, and myself. We are all available on our respective topics to answer any questions. So doctors, we have a comment from Beena Singh. Jharna from Beena Patel. And she says, thank you very much for the lovely session. It was very, very helpful. Dr. Riddhi, there is a question from Jharna. Can she have coconut water daily? Hear me? Yes, we can hear you now, ma'am. Yes. So regarding the coconut water she can have, but it depends on the season. For example, अगर monsoon में coconut water ज़्यादा लेंगे तो उनको gastric issues हो जाएंगे. So I would not say कि coconut water हर रोज लेना जरूरी है. Okay, उसमें आपका metabolism वो देखना बहुत जरूरी है. अगर आपको लेना है तो आप सुबह के 11 से 11:30 के बीच में लो. उसको खाने के आजू बाजू मिनिमम 2 आवर्स का गैप होना चाहिए. आप कोकोनट वाटर लेते हो और फिर तुरंत कुछ खा लिया तो ब्लोटिंग हो जाएगा. सो 2 आवर्स का गैप मेंटेन कीजिए. इन जरूरी नहीं है कि कोकोनट वाटर लोगे तो ही बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगा. सो अगर आपको सूट करता है तो डेफिनेटली आप ले सकते हो, बट मॉनसून में आई वुड नॉट सजेस्ट. विंटर और इन समर में स्पेशली हम लोग रेकमेंड करते हैं, नॉट इन द मॉनसून दो. एक्चुअली कोकोनट वाटर के इर्द गिर्द इतने सारे मिथ्स हैं. आई डोंट नो आपने कितने सुने हैं मैम, बट लेकिन मैंने तो पता नहीं कितने सुने हैं. मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बोला गया था कि कोकोनट वाटर लेने से आपके बेबी का सर कोकोनट के जैसे हो जाएगा. या किसी ने मुझे ये बोला कि कोकोनट, मैंने भी सुना था ड्यूरिंग यस, मेरी मदर इन लॉ का ये मानना है और उनकी बिल्कुल अलाउ नहीं किया था कि आपको नहीं ही लेना है. सो इट इज डेफिनेटली कल्चरल बिलीफ इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है. सो अगर आपके घर में कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये नहीं लेना है तो बहुत ज्यादा उसके लिए आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही चीज नहीं है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं. यू कैन ऑलवेज रिप्लेस द थिंग्स. Right. So one husband wants to know, and I think I'll answer this question about the baby's sleep cycle. See, I am very happy कि husband आप अपने wife को support करना चाहते हैं. He wants to give his wife rest. So I am very happy about that. लेकिन breast feeding तो wife को ही करनी पड़ेगी, मतलब mother को ही करनी पड़ेगी. तो जब बेबी उठते हैं तो ब्रेस्ट फीड करके अगर बर्प वगैरह के टाइम पे आप सपोर्ट कर दें तो मदर कैन गो बैक टू स्लीप. एंड अगर समझो बेबी थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप बेबी को हैंडल कर सकते हैं एंड अलाउ द मदर टू रेस्ट. सो दैट विल हेल्प द मदर. आई थिंक हस्बैंड का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल यही रहता है कि वाइफ को सपोर्ट करिए, क्योंकि उस टाइम पे उसको इतने सारे लोग इतनी सारी चीजें बोलते हैं कि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है, फ्लस्टर हो जाती है. तो उनको सपोर्ट करिए. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल एवरीबॉडी दिस एंड आई स्टिल टेल ऑल माय क्लाइंट्स
कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी मदर को भी हैंडल कर लेते थे, मेरी मदर इन लॉ को भी हैंडल कर लेते थे. मदर इन लॉ तो उसकी मदर थी और मेरी मदर के लिए वो दामाद थे. तो बिल्कुल एब्सोल्युटली हैंडलिंग हो जाती थी. मैंने ये काम उन्हीं को दे दिया था कि जो भी मदर इन लॉ बोले, जो बाहर वाले लोग बोले, वो उन्हीं को हैंडल करना था. ओके, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 9th मंथ है तो मैं ब्रेस्ट पे मसाज कर सकती हूँ. मैम, प्रेगनेंसी के दौरान निपल स्टिम्युलेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन या अर्ली लेबर शुरू हो सकता है. तो हल्के हाथ से अगर आप ऑयल वगैरह लगाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मसाज नहीं कर सकते. अच्छा, अभी डॉक्टर प्रेरणा, ये वाला सवाल आपके लिए है. ट्रैवलिंग मोर देन 50 किलोमीटर्स बाय कार, कैन आई डू दैट? गुड क्वेश्चन. डेफिनेटली डिपेंड्स कि आपका कौन सा स्टेज चल रहा है प्रेगनेंसी का. 50 किलोमीटर, राइट? 50, yes, 50. I think it is absolutely okay to travel 50 kilometer even if she is 36 weeks तक चलता है. तो ड्यू डेट के ऑलमोस्ट 4 वीक पहले she can travel. Right. So I think इसमें एक क्लॉज ऐड कर देते हैं, आपकी अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है और डॉक्टर ने परमिशन दे दी है तो यस, प्लीज गो अहेड. राइट. ओके, डॉक्टर प्रेरणा, एक सवाल और है. 15 days before I was suffering from cold and I lost my smell for 4 days. But now I'm all okay. क्या मुझे कोविड इन्फेक्शन लगा होगा? If yes, तो बेबी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ये टेस्ट के बिना बोलना मुश्किल है. डेफिनेटली ये कोविड का सिम्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड में ही ये होता है. और भी इन्फेक्शन है जिसमें ये सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं. तो विदाउट टेस्टिंग इट इज डिफिकल्ट टू से कि यही इन्फेक्शन था. और अगर आपकी अभी बेबी मूवमेंट वगैरह बराबर है और वो एपिसोड के बाद अगर आपने गायनेक चेकअप, मतलब बेबी का चेकअप करवा लिया है, सोनोग्राफी करवा लिया है, and if doctor is telling कि everything is fine, then I think nothing to worry. It is just a viral infection, whatever it is, like कोई भी infection हो. लेकिन if baby is all right now in the sonography, it is absolutely right. All right. Thank you. Any more questions, audience? So I think अभी audience के भी questions सारे से खत्म हो गए हैं. Thank you very much, doctors. We'll start with Dr. Anand. I don't know. Oh wait, 2-3 और questions आ रहे हैं. एक तो मैम, डॉक्टर प्रेरणा, वुड यू रेकमेंड एनी स्ट्रेच मार्क क्रीम? हाँ, काफी रेमेडीज अवेलेबल है मार्केट में, स्ट्रेच मार्क क्रीम्स, एंड वी जनरली एडवाइज फ्रॉम द 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब जैसे 5वें महीने से भी सजेस्ट. लेकिन बिफोर मतलब शुरुआत से ही अप्लाई करो तो स्किन की क्वालिटी भी अच्छी होती है. दैट प्रिवेंट स्ट्रेच मार्क एट सम लेवल, क्योंकि स्ट्रेच मार्क कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्किन क्वालिटी. तो वो ऐसे अचानक से कोई क्रीम यूज करने से वो कम नहीं होगी, लेकिन उसका शुरुआत से स्किन केयर किया जाए और स्ट्रेच मार्क क्रीम यूज किया जाए तो डेफिनेटली 50% रिलीफ रहता है. सो वी डू रिकमेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अवर पेशेंट्स आल्सो वी प्रिस्क्राइब स्ट्रेच मार्क क्रीम्स. लेकिन दैट रिजल्ट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द स्किन क्वालिटी, स्ट्रेचिंग कितना हो रहा है और स्किन कितना उसमें इलास्टिक टिश्यू और कोलेजन टिश्यू का लेवल कैसा है. राइट. एनी पर्टिकुलर क्रीम मैम, आप कोई 1-2 नाम देना चाहेंगी? वी गिव हिमालय का आता है ऑयल प्लस क्रीम, जनरली वो रेकमेंड करते हैं. और एक कंपनी हाँ, और दैट गिव्स बेस्ट रिजल्ट क्योंकि उसमें ऑयल भी है और क्रीम भी है, तो मॉइस्चराइजेशन भी रहता है और साथ में वो स्ट्रेच मार्क्स के लिए अच्छा रिजल्ट्स भी देता है. तो वी जनरली रेकमेंड दैट. ओके. और प्लेन कोकोनट ऑयल, और एनी प्लेन कोकोनट ऑयल, बायो ऑयल, एनीथिंग इज ओके फॉर दैट. क्योंकि बेसिकली जो ड्राइनेस होती है और उसकी वजह से इचिंग वगैरह होती है, उसको भी वो प्रिवेंट करता है. तो एनी कोकोनट ऑयल है, बायो ऑयल है, दैट ऑल आर ओके. राइट. थैंक यू. रिद्धि मैम, any special exercise
exercise for normal delivery? Normal delivery, yes, definitely. So starting from the second trimester, that is the 4th month, if you practice antenatal yoga, that really increases the chances for the normal delivery. And pregnancy के दौरान जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका weight gain optimal है, यानी डिपेंडिंग आप कौन से BMI के रेंज में फॉल करते हो, अगर नॉर्मल कैटेगरी के BMI में BMI के रेंज में हो, तो आपका 10 to 12 kg वेट गेन जहाँ पे हुआ है तो चांसेस बढ़ ही जाते हैं डेफिनेटली. तो ओबेसिटी से CS के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो डेफिनेटली आप अपना वेट मैनेजमेंट करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. डाइट या डाइटिंग की बात नहीं हो रही है, बट जिस हिसाब से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, जैसे मैंने बताया. एंड फिजिकल एक्टिविटी करे, स्ट्रेस ज्यादा ना ले, हैप्पी रहे, तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ ही जाते हैं. बायोलॉजिकल क्लॉक और वो सारे 5 फैक्टर्स डेफिनेटली रोल प्ले करते हैं. I would like to add on this कि जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉर्मल रिद्धि मैडम ने बताया जैसे फिजिकल एक्टिविटी तो करनी है, लेकिन आफ्टर 35 वीक्स वी कैन सजेस्ट फॉर द स्क्वाट्स एंड वॉक एंड डक वॉक. ऑल दिस एक्सरसाइज आर अवेलेबल फॉर द नॉर्मल डिलीवरी. एक्सपर्ट से सीख के वो एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हैं. बोला जाता है पोछा मारना. हाँ, तो वो एक्सपर्ट को पूछ के, आपके कंसल्टिंग डॉक्टर है उनको पूछ के कि whether it is advisable for you at this stage, so you can go ahead. So many exercises are there to do this to make the space, vaginal space better for the normal delivery. Right. Okay, so I think there is one mother who is asking कि baby के birth के बाद traveling का क्या situation है? आपको अगर कहीं जाना तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि वी आर अवॉइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन आपका क्लोज डेस्टिनेशन है या बाजू में कहीं जाना है बाय प्राइवेट व्हीकल, तो शॉर्ट डिस्टेंस के बेबी के साथ जा सकते हैं. Even with precautions, I think they can travel with the newborn baby also. I have also traveled with the 15 days old kid from Coimbatore to Ahmedabad. मेरा जो पहला प्रेगनेंसी था उसके बाद एंड डॉक्टर उसमें जनरली क्या है कि मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड करती है कि सिजेरियन है कि नॉर्मल डिलीवरी है, लेकिन आफ्टर 10 or 15 days it is absolutely safe to travel from the aspect of delivery. Like जो मदर का है उसका बॉडी और बेबी के लिए सेफ है. डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ कोविड द क्राइटेरिया चेंजेस, बट डेफिनेटली शी कैन ट्रैवल. Sure. Absolutely. And I think we'll take the last question from Khushbu. I think she's asking coconut oil, can I apply in the 9th month? Yes, you can apply coconut oil in the 9th month. Absolutely, you can. All right. So thank you so much doctors. Thank you audience. आप लोग ने बहुत patience के साथ हमारी बातें सुनी. And thank you Dr. Riddhi, thank you Dr. Prerna. A very big thank you to Dr. Anand for helping us to organize this session. Thank you to Code Life for facilitating the session. All right. Thank you, everybody. Have a very good day and a great weekend ahead. Bye-bye. Thank you. Bye.